السلام علیکم سرس نیوز کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکھر اور میں ہوں ماہنور معراج۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، آغاز کریں گے اس دعا کے ساتھ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی، اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل کے صدقے میں ہمیں ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھ۔ آمین ثم آمین۔ اشتہاری مجرم نواز شریف کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ سابق وزیر اعظم مریم نواز شاہد خاقان عباسی کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ شہری کی درخواست پر تھانہ شادرہ میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں ظفر الحق، خرم دستگیر، اقبال ظفر جھگڑا، صلاح الدین، احسن اقبال، شیخ آفتاب، پرویز رشید، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، ایاز صادق کو بھی نامزد کیا گیا۔ بیگم نجمہ وحید، بیگم ذکیہ شاہ نواز، طارق رزاق چودھری، شیزہ فاطمہ، جاوید عباسی، مہتاب عباسی، جاوید لطیف، مریم اورنگزیب اور دیگر کو بھی ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے متن میں کہا گیا نواز شریف نیب قوانین کے تحت سزا یافتہ مجرم ہیں۔ اشتعال انگیز تقاریر کے ذریعے اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسایا گیا۔ پاکستان کے قوانین سزا یافتہ مجرم کو ایسی تقاریر اور اقدامات کی اجازت نہیں دیتے۔ گزشتہ روز نواز شریف کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف بھی گجرانوالہ میں بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی تقاریر پر پابندی کی درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی تقاریر پر پابندی کی درخواست پر چیف جسٹس اطہر منالہ نے سماعت کی۔ دوران سماعت چیف جسٹس ہائی کورٹ کی جانب سے استفسار کیا گیا۔ سیکیورٹی ادارے موجود ہیں، ملک میں پارلیمنٹ بھی ہے، سیاسی نوعیت کے معاملات میں عدالت کو کیوں ملوث کرنا چاہتے ہیں؟ چیف جسٹس اطہر منالہ کی جانب سے ریمارکس دیتے ہوئے کہا گیا کیوں نہ درخواست گزار کا کیس بار کونسل کو بھیج دیا جائے۔ نون لیگ کے رہنما عطا تارڑ نے شہباز گل کے گھر کے گھیراؤ کی دھمکی دے دی۔ کہا شہباز گل سرکاری عہدہ رکھتے ہیں اور امریکی ادارے سے ڈالر بھی وصول کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کے سارے کرداروں سے واقف ہیں۔ اثاثہ جات کیس میں ایک ڈھیلے کی کرپشن نہیں کی۔ عظمیٰ بخاری نے کہا غداری اور بغاوت کا الزام آخری کارڈ ہوتا ہے، وہ حکومت نے کھیل لیا ہے، اب ہماری باری ہے۔ ہمارے پہ ایک پائی سرکاری فنڈ یا پبلک منی یا کرپشن کا الزام نہیں ہے۔ یہ سارے وہ نام ہیں جو کرپشن میں ملوث ہیں۔ اور شہزاد اکبر، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ دن دور نہیں ہے جب آپ اپنے ملک واپس جائیں گے یہاں سے بھاگ کے، اور آپ کا نام ای سی ایل پہ ہوگا، ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ کے ہم سارے کرداروں کو جانتے ہیں، شکلیں بھی پہچانتے ہیں۔ تو جس طرح میں نے شہباز گل کو کل مناظرے کا چیلنج دیا تھا، میں انتظار کر رہا ہوں شہباز گل، ابھی تک تم نے مناظرے کا چیلنج ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اپنے مرضی کے چینل، اپنی مرضی کی جگہ، اپنے مرضی کے ٹائم پہ بلا لو، میں تیار بیٹھا ہوں۔ یہ جو بھارتی ایجنٹ کے تم نے نعرے لگائے ہیں، یہ ثابت کرنا پڑے گا، تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے، اور اگر ثبوت نہ دیے تمہارے گھر کا گھیراؤ کریں گے۔ ہم نے ورکرز کو ابھی بڑا روک کے رکھا ہے۔ یہ غداری اور بغاوت یہ ہمیشہ کسی آمر کی، اور اس وقت بھی ایک آمر ہی حکومت میں ہے، وزیر اعظم نہیں ہے، اور یہ کسی حکومت کا آخری کارڈ ہوتا ہے جو انہوں نے کھیل دیا ہے۔ تو آخری داؤ تم نے چل دیا، اب ہماری باری ہے۔ منی لانڈرنگ کیس میں سلمان شہباز اور نصرت شہباز کے وارنٹ گرفتاری دوبارہ جاری کر دیے گئے۔ شہباز شریف نے کہا عمران خان اور شہزاد اکبر کی ایما پر نیب حراست نے مجھے تنگ کیا جا رہا ہے، اگر کمر کی تکلیف بڑھی تو ان کے خلاف کارروائی کروں گا۔ احتساب عدالت میں آمدن سے زائد اثاثہ جات و منی لانڈرنگ ریفرنس پر سماعت ہوئی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو عدالت کے روبرو پیش کیا گیا۔ وزارت خارجہ کے نمائندے سرفراز احمد نے سلمان شہباز اور نصرت شہباز رابعہ عمران کے نوٹس وصولی کی رپورٹ پیش کی۔ عدالت کو بتایا گیا ملزمان کے بیرون ملک پتے پر نوٹس وصول کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ شہباز شریف نے عدالت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وہ اپنی شکایت کرنا چاہتے ہیں، نیب ان پر بیجا رکھ کر اور کھانا دینے سے بھی انکاری ہے، جبکہ نماز کے لیے کرسی کا رخ تبدیل کرنے کی سہولت بھی نہیں دی جا رہی۔ نیب یہ سب کچھ عمران خان اور شہزاد اکبر کی ایما پر کر رہا ہے، اگر کمر کی تکلیف بڑھی تو ان کے خلاف کارروائی کروں گا۔ اس پر نیب پروسیکیوٹر نے کہا ان سیل ڈسپینسری میں رکھا جائے۔ عدالت نے نیب اہلکاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ انہیں اس قسم کی شکایت نہیں آنی چاہیے۔ اس حوالے سے آج احکامات جاری کیے جائیں گے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 13 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔
जाली बैंक अकाउंट्स स्कैंडल में पार्क लेन ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंसेस में आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। साबिक सदर ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। आसिफ अली जरदारी पर पार्क लेन, जिमनी और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट केसेस की समाअत हुई, जिसमें साबिक सदर और शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी समेत दीगर मुलजमान पेश हुए। इस मौका पर जज एहतसाब अदालत ने कहा कि तमाम मुलजमान मौजूद हैं, इसलिए फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई करते हैं, जिसके बाद आसिफ अली जरदारी और रेफरेंस में नामजद दीगर मुलजमान को चार्जशीट फराहम की गई। फर्द जुर्म की कापियां फराहम किए जाने के बाद अदालत ने पार्क लेन, जिमनी रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत 19 और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में 15 मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत की जानिब से फर्द जुर्म आयद किए जाने पर आसिफ अली जरदारी ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार पर अदालत ने पार्क लेन, जिमनी रेफरेंस में नैब को 20 अक्टूबर जबकि ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में 21 अक्टूबर को गवाहों को पेश करने का हुक्म दे दिया। ठट्ठा वाटर सप्लाई, जिमनी रेफरेंस में गवाह इमरान महमूद, अली रजा और तारक मुनीर पेश किए जाएंगे, जबकि पार्क लेन रेफरेंस में नबील ज़हूर, एहसन असलम और अब्दुल कदीर नैब की जानिब से बतौर गवाहान पेश किए जाएंगे। मोहम्मद असलम खोखर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ख्वाजा आसिफ ने मेरे खिलाफ बयान किसी की ईमा पर दिया होगा। उनका बयान ऑपोजिशन में दरारें डालने की कोशिश है। ऑपोजिशन में होते हैं तो इस तरह के केसेस बनते रहते हैं। ख्वाजा आसिफ ने आपसे मुतल्लिक बयान दिया था कि आप पर एतबार नहीं, क्या कहते हैं? चलो आप समझते हैं कि ये अपोजिशन में दरारें डालने की कोशिश है? आमदन से जायद असजात केस में खुर्शीद शाह समेत दीगर मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। खुर्शीद शाह कहते हैं हुकूमत बताए कौन एनआरओ मांग रहा है। खुर्शीद शाह ने अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान ने कहा करते थे कि 10 अरब रुपए की रोजाना करप्शन होती है। अब तो 10 अरब रुपए इमरान खान को बच जाते हैं। मुल्क के मुआशी हालात बहुत खतरनाक हैं। हर शख्स को गद्दारी का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। सवाल भी क्या कि ये सिलसिला कब खत्म होगा। आपको बताएं कि खुर्शीद शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने अपना खून देकर जमहूरी निजाम को कायम किया है। ऊपर जो तबाही हो रही है महंगाई की, उनसे अवॉइड करने के लिए इन लोगों ने नाम नेहाद 2 नैरेटिव बनाए हुए हैं। रिश्वत नहीं छोड़ेंगे, एनआरओ, भाई आपसे कौन एनआरओ मांग रहा है? क्यों खाम खा के आप महंगाई खत्म करो, बिजली सस्ती करो। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डीजी एलडीए आहा चीमा की दरखास्त जमानत पर ट्रायल कोर्ट से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट में साबिक डीजी एलडीए आहा चीमा की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान इस समाअत आहा चीमा के वकील ने कहा मुकदमे के शरीक मुलजिमान को जमानत मिल चुकी है, मेरे मौक्किल के साथ भी दूसरे मुलजिमान जैसा सलूक किया जाए। जिस पर जस्टिस मुशीर आलम ने कहा ट्रायल कोर्ट की रिपोर्ट आने के बाद देखेंगे। अदालत ने ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट तलब कर ली और केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। पीटीएम की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक आज इस्लामाबाद में होगी। मुल्क की सियासी सूरत हाल और अपोजिशन की आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। मजीद जानेंगे अलमदार बलोच से। जी अलमदार। जी बिल्कुल मानूर, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक जो किचन का एक नया हाथ बना है, स्टीयरिंग कमेटी है, उसकी आज एक बैठक जो है वो हो रही है। जो मौजूदा सूरत हाल है अपोजिशन की आज लिए उस पर किया जाएगा। आज की जो बैठक है बिल्कुल का जो एजेंडा है वो जो तहरीक जा रही है उसके जब शेड्यूल है हतमी शक्ल की और बाकायदा तौर पर ताकि जलसे जो है उनकी तारीख है मुकर्रर की, उस हवाले से कारकुनान को भी और जिली और पर रहनुमा तैयारियों का है वो दिया जाए, शेड्यूल दिया जाए ताकि वो अपनी तैयारियां मुकम्मल करें। और इसके साथ साथ ये जो इसको कामयाब बनाना है, किस तरह है, उस हवाले से अंदाज में इसको देखकर किस तरह चलना है, इस पर भी जो है बातचीत की जाएगी। और साथ साथ जो पिछले दिनों अपोजिशन गिरफ्तारी हुई, जो अपोजिशन रहनुमा गिरफ्तार है नैब में। सही, बहुत शुक्रिया अलमदार बलोच आगाह करने के लिए। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात का मरहला, पीटीआई का कुल 24 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की नामजदगी का अमल मुकम्मल कर लिया गया।
पार्लिमानी बोर्ड ने उम्मीदवारों की मुकम्मल हतमी फहरिस्त जारी कर दी है। और शिराजी से तफसीलात जानेंगे। और शिराजी बताइएगा, गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के मरहलों के हवाले से क्या तफसीलात है? हाँ जी अस्सलाम, बिल्कुल देखिए, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कुल 24 नशिस्तें और तहरीक इंसाफ ने इन तमाम नशिस्तों पर अपने उम्मीदवारों को हतमी फहरिस्त जो है वो जारी कर दिया है। अगर इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो GBL एक गिलगित 1 से जौहर अली, जबकि GBLA 2 गिलगित 2 से फतहुल्लाह खान को तहरीक इंसाफ का जो है वो टिकट दिया गया है। GBL 3 से सैयद जाफर शाह, GBL 4 नगर 1 से जुल्फकार अली, GBL 7 स्कर्दू 1 से राजा मोहम्मद जकरिया, GBL 9 स्कर्दू 3 से फिदा निशाद, GBL 10 स्कर्दू 4 से वजीर हुसैन, जबकि GBL 11 खरबंग से सैयद अमजद अली। उसके साथ साथ GBL 12 शिगर से मोहम्मद खालिद, GBL 13 अस्तूर से जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे, GBL 14 अस्तूर से 2 से शमसुल हक लोन का इंतखाब किया गया। इसी तरह तमाम उम्मीदवारों का बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया गया। खास करके 2 अहम सीटें थी जिनमें GBL 22 खांचे 1 से मोहम्मद इब्राहिम, जबकि GBL 24 खांचे 3 से सैयद शमसुद्दीन को जो है वो तहरीक इंसाफ का टिकट दिया गया है, ताकि तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान और ठीक है, बहुत शुक्रिया। और शिराजी तफसीलात से आगाह कर रहे थे। FATF इजलास 21 से 23 अक्टूबर तक होगा। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का फैसला होगा। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की माली मुआवनत पर कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। मजीद जानेंगे कामरान चौधरी से। कामरान, इजलास के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, फाइनेंशियल नेशनल टास्क फोर्स का इजलास जो वो अक्टूबर है और तारीख सामने आ गई है। 21 से 23 अक्टूबर तक होगा ये इजलास और बात जो है वर्चुअल सतह पे जो है वो का फैसला किया गया है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का फैसला भी होगा। मनी लॉन्ड्रिंग और माली मुआवनत सरकार का जायजा लिया जाएगा। इससे कबल पाकिस्तान को SSTF की जानब से 4 खाता अगर दिया गया था। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से न मिलना तो जराए बता रहे हैं दरामद के लिए जो है वो कई शराइत पाकिस्तान को पहुंची जाएंगी। जायजा तेरह बात पर तामीर की तफसीलात जमा करवाई जाएंगी। पाकिस्तान जारी रहने वाले इजलास। सही, बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी अपडेट करने के लिए। कराची में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के बाद शहर के मुख्तलिफ UCs में स्मार्ट लॉकडाउन जारी कर दिया गया, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। ताज़ा तरीन सूरत हाल अशरफ सोलंकी से जानेंगे। अशरफ सोलंकी, बताइएगा। जी देखिए, मुल्क भर में कोरोना के वापस आने की वजह से, कोरोना वबा वापस दोबारा फैलने की वजह से मुख्तलिफ कराची के इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ इलाकों मलीर, सरजानी और उससे मुलहका जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। और उस स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से उन गलियों, उन सड़कों और उन इलाकों को सील तो किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो SOPs का अमल दरामद, SOPs जो हुकूमत की जानिब से दी गई है उस पर अमल दरामद देखते हुए नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि शहरियों को पता ही नहीं है कि स्मार्ट लॉकडाउन होता क्या है। पहले तो स्मार्ट लॉकडाउन का शहरियों को बताना होगा और उसके बाद ही इस स्मार्ट लॉकडाउन पे अमल दरामद हो सकता है। हर गली, हर शारा, हर इलाके में होटल्स खुले हुए हैं, चाय खाने खुले हुए हैं। वहाँ पर ना तो कोई मास्क यूज़ कर रहा है, ना ही सैनिटाइज़र, ना ही किसी सोशल डिस्टेंस का ख्याल किया जा रहा है। तो इस तरह स्मार्ट लॉकडाउन लगने का कोई फ़ायदा नहीं है। शहरियों का और जो माहिरीन हैं उनका कहना है कि स्मार्ट लॉकडाउन के लिए पहले तो शहरियों को आगाही देनी होगी और शहरियों को बताना होगा कि स्मार्ट लॉकडाउन होता क्या है, उसके बाद ही इस पर अमल दरामद हो सकता है। मुख्तलिफ इलाकों में केसेस बढ़ने का जो है, केसेस बढ़े हैं। खासतौर पर सरजानी में 22 केसेस जाहिर हुए, तो उसके बाद UC 8 को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया और वहाँ पर शहरियों की नकलो हरकत पर भी पाबंदी लगाई गई, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जी मोहम्मद जुबैर कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम ये चाहते थे कि उनके जो नाकदीन हैं वो बिल्कुल वो उस पर रिएक्ट कर सकते हैं, उसके जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उस पर रिएक्ट करें और क्रिटिसाइज भी करें। ये जमहूरी मुल्क है, जैसे हम क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे हम हक मांगते हैं क्रिटिसाइज करने का, और हम कहते हैं कि एक, जिस तरह मैं कहता हूँ, एक मरियम नवाज साहिबा एक नहत्ती लड़की हैं, आप सियासत करें। शेख रशीद 50 साल हो चुके हैं उनको, 50 साल सियासत में। हर रोज आके थ्रेट क्या करते हैं, कोर्ट कचहरी का थ्रेट करते हैं, नैब का थ्रेट करते हैं,
ذاتیات کا تھریٹ کرتے ہیں. بھائی آپ سیاست نہیں کر سکتے. ایک نہتی لڑکی کے ساتھ آپ سیاست کرتے ہوئے اتنا ڈر خوف ہے. پرائم منسٹر انٹرویو دیتے ہیں تو اس میں بھی ذاتیات پر آ جاتے ہیں, اس میں بھی اس چیز پر آ جاتے ہیں جو کہ میرا خیال ہے جو سب سے خراب چیز پی ٹی آئی نے جس چیز کو دوبارہ سے انٹروڈیوس کیا ہے. ہم سمجھے تھے کہ 15-20 سال پہلے پاکستان میں ایک ایسا ماحول آیا تھا جس پہ غداری کا سرٹیفکیٹ نہیں بانٹا جاتا تھا. پاکستان نے ایک تجربہ کر کے 40-50 سال دیکھ لیا تھا کہ فاطمہ جناح صاحبہ کو غدار, فاطمہ جناح کو جو قائد اعظم کی بہن تھی ان کو بھی غدار کہا تھا. تو جب فاطمہ جناح کو نہیں بخشا تھا تو ظاہر ہے ہمیں تو نہیں بخشیں گے. لیکن یہ سیاست کا طریقہ نہیں ہے. ہمیں لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے عمران خان سے, اور ہے شدید اختلاف ہے. ہمیں الیکشن 2018 پر بھی اختلاف ہے, ہمیں دھرنا 2014 پر بھی اختلاف ہے, ہمیں کانسپریسیز پر بھی اعتراض ہے جو کی گئی تھی پی ایم ایل این کی لیجیٹیمیٹ حکومت کو گرانے کے لیے. خبریں ہوں گی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. کورونا کے باعث بند ہونے والے اسکول تو کھول دیے گئے, لیکن کچھ اسکول ایسے ہیں جہاں کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے, جس کے باعث اب تک اسکولز میں تدریسی عمل شروع نہیں ہو سکا. مزید جانے کے عطا حسین سے. جی عطا. جی بالکل, دیکھیں کورونا وائرس کے باعث بند ہونے والے جو اسکول تھے وہ 6 ماہ بعد جو ہے وہ کھول دیے گئے ہیں, اور اسکول میں ایس او پیز اور اس وبا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کو اپنانے کو لازمی قرار بھی دیا گیا ہے. لیکن کچھ بیشتر اسکول شہر کے ایسے ہیں جہاں پہ ابھی تک جو ہے تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ تعلیمی سرگرمیاں جو ہے تدریسی عمل جو ہے وہ اب تک شروع نہیں ہو سکا ہے. میں اس وقت سرجانی ٹاؤن کے ایک سرکاری اسکول کی چھت پہ موجود ہوں. اگر میرا کیمرہ مین اس اسکول کو دکھائے, آپ کو اس اسکول کی صورتحال دکھائے, تو اس اسکول کی جو ہے صورتحال بد سے بدتر ہے. کیچڑ کچرا اسکول کے اندر موجود ہے, اور یہ جو ہے جراثیم, مکھیاں اور مچھروں کی بہتات یہاں پہ اس گندگی سیویج کے پانی سے جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے تعفن بھی پھیل رہا ہے. اور یہاں پہ اس کے ساتھ بھی مسجد بھی ہے. اگر میں کیمرہ مین اصغر کو کہوں کہ یہاں کا جو انٹرنس ہے اسکول کا, اگر اس کی حالت دکھائے تو انٹرنس کی حالت بھی جو ہے بد سے بدتر ہوئی ہے. کیچڑ پانی جو ہے جمع ہوا ہے, اور کلاسوں کی حالت ایسی ہے, ٹیبلیں, کرسیاں اور دیگر جو کلاس میں سامان ہوتا ہے وہ پانی میں تیر رہا ہے. یہاں پہ باقاعدہ حکومت کی جانب سے کوئی بھی یہاں پہ جو ہے ابھی تک کوئی بھی نمائندہ جو ہے آیا نہیں ہے. اسکول میں جو ہے تدریسی عمل اب تک جو ہے بحال نہیں ہو سکا ہے. یہاں کے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ حکومت ماسک پہننے کا تو کہتی ہے لیکن صفائی ستھرائی بالکل نہیں کرتی ہے. جی صحیح, بہت شکریہ عطا حسین. وفاقی وزیر اسد عمر کے حلقے میں لوگ آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں. سکولز نہ ہونے کی وجہ سے سیکٹر F12 کے دہاڑی دار لوگ اپنے بچوں کو مقامی لوگوں کی جانب سے بنائے گئے ٹین کے چھتوں اور کچی دیواروں پر مشتمل سکولز میں اپنے بچوں کو پڑھانے پر مجبور ہیں. اسلم کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانیں گے. اسلم, بتائیے گا کیا صورتحال ہے علاقے کی؟ جی بالکل, اس وقت میں موجود ہوں F12 کا یہ علاقہ ہے, ڈھوک چورا کہلاتا ہے. یہاں پر ایک ایسا سکول ہے جو کہ یہاں کے لوگوں کی اپنی مدد آپ کے تحت قائم کیا گیا, اور یہاں پہ جو زیادہ تر آبادی ہے وہ غریب لوگوں کی ہے, دہاڑی دار لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو اسلام آباد کے سکولوں میں نہیں پڑھا سکتے. میرے ساتھ یہاں پہ جو انتظامیہ وہ میرے ساتھ موجود ہے, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. سر, ابھی یہ بتائیں کہ آپ یہ سکول کس طرح چلاتے ہیں, آیا کہ اس کے علاوہ بھی آپ کی برانچز ہیں یا نہیں ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. اس میں یہ ہے کہ ہماری 8 برانچز ہیں پہلی کرن اسکول کے نام سے, جو ہم اسلام آباد کی سراؤنڈنگ میں جو انسروڈ کمیونٹیز ہیں وہاں پہ ان کو ہم چلا رہے ہیں. انہی بچوں کو ہم لے کے چلتے ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہوتے ہیں یا جو تعلیم کے ایکسپینسز جو ہیں وہ کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو اسی یہ جو ہماری برانچ ہے یہ پہلی کرن اسکول نمبر 8 ہے. تو اس کے تحت ہم نے جو بچوں کو یہاں پہ لے کے آئے ہیں جو پنجاب سائڈ سے یا جہاں سے افغان ریفیوجیز بھی ہیں اس کے اندر, اور بہت سارے ایسے بچے ہیں جو انسروڈ ہیں, یعنی کہ بالکل ان کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے. جی بالکل, جیسے کہ ان کا کہنا ہے یہاں پہ بالکل شیڈز بنے ہوئے ہیں, بچے جو ہے وہ ٹاٹو پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, جو بھی ان کی استطاعت ہے اس کے مطابق پڑھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ اسکول کی پرنسپل صاحبہ موجود ہے, ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. میڈم, ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ کتنے بچے یہاں پہ آپ کے پاس پڑھتے ہیں اور کس طرح آپ کا طریقہ کار ہے, کیا پڑھاتے ہیں ان کو؟ میرے پاس 394 بچے ہیں صبح شام کی شفٹ میں. 2 شفٹس ہم لوگ لگاتے ہیں, مطلب 8 سے 12 بجے تک اور پھر 12:30 سے 4:30 بجے تک. تو اس میں یہ کہ صبح میں ہماری پرائمری کلاسز ہوتی ہیں اور ہمارا اسکول جو ہے وہ مونٹیسوری ہے. تو ہم بچوں کو تعلیم سے زیادہ تربیت پہ فوکس کرواتے ہیں اور ان کو بنیادی چیزیں سکھاتے ہیں, اور آفٹر نون میں جو ہے ہماری بڑی کلاسز ہوتی ہیں.
बड़ी क्लासेस थे। बिल्कुल यहाँ पे मैम ने देखा कि मेरा कैमरामैन बिलावल थोड़ा सा आपको दिखा सके, ये बच्चे बैठे हुए हैं पीछे टाटू पे बैठ के पढ़ रहे हैं। असद उमर का ये इलाका है जहाँ पे इन बच्चों को हुकूमत तो स्कूल ना दे सकी, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, मकामी लोग, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत इनको स्कूल दिया और तालीम की रोशनी जो है उनको दी जा रही है। जी शुक्रिया असलम खोखर। मुल्क में यौम असातिज़ा मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद असातिज़ा की हौसला अफजाई करना है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने असातिज़ा के लिए कोई भी तकरीब मुनक्किद नहीं की। मजीद जानेंगे अदनान शाहिद से। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखें आज पूरे मुल्क में यौम असातिज़ा का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन का बुनियादी मकसद असातिज़ा को खिराज अकीदत पेश करना है, क्योंकि ये वो तबका है जो कि कौम के मामार को जो है इनकी रोशनी से रोशनास करते हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ असातिज़ा मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनका इस दिन के हवाले से क्या कहना है। सर क्या कहेंगे, आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, क्या पैगाम देंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आप सबको मालूम है कि एक उस्ताद जो है वो कौम की बनाने में बहुत अहमियत रखता है और उस्ताद की ख्वाहिश यही होती है कि उसके तलबा पढ़ के कौम की तरक्की में, मुल्क की कौम तरक्की में अहम किरदार अदा करे। तो लेकिन इसमें ये है कि हमारे उस्ताद को भी चाहिए कि वो अपना काम ईमानदारी से करे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने असातिज़ा की बात सुनी, उनका यही कहना है कि इस दिन का बुनियादी मकसद यही है कि इनकी रोशनी से जो असातिज़ा को या जो स्टूडेंट्स हैं उनको इनकी रोशनी की तरफ लेकर आएँ, ताकि जो मुल्क और कौम की तरक्की में ये भी अपना हिस्सा जो है वो डाल सके। ताहम सूबाई हुकूमत की अगर बात करें तो असातिज़ा कराम का आलमी दिन तो बनाया जा रहा है, मगर हुकूमत की जानिब से इस दिन के हवाले से किसी किस्म के कोई भी तकरीब का इनेकाद जो है वो नहीं किया गया, जिस पर असातिज़ा कराम जो है हुकूमत की कारकर्दगी पर काफ़ी नालाम भी दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि इस दिन को बुनियादी तौर पर जो है वो मनाया जाए, ताकि जो असातिज़ा के हकूक़ हैं उनको भी अपनी हकूक़ के मुताबिक जो है वो दर्जात मिल सकें। जी सही, बहुत शुक्रिया अदनान शाहिद। कौमी इदारा बहाली माजूरा के अमले को शिकायत लगाना महंगा पड़ गया। कौमी इदारा बहाली माजूरा इंतजामिया के मुलाजमीन के खिलाफ इंतजामी कार्रवाइयां जारी हैं, जबकि मुल्क के वाहिद कौमी इदारा बहाली माजूरा में काम बंद होने का खदशा जाहिर किया गया है। सजाद काज़मी से तफसीलात जानेंगे। सजाद काज़मी बताइएगा। आज भी पार्लियामेंट की कानून लगी केस की जानिब से जो है हेरिन अस्पताल का दौरा किया गया था, जिसमें यहाँ पर जाकर उन्होंने मुलाजमीन से बात की और उनसे मसाइल जाने की कोशिश की। मुलाजमीन ने जो है मसाइल जो है और वो तमाम बयान की, जिस पर इंतकामी कार्रवाई की गई। और जो डॉक्टर शाइस्ता हैं उनको इल्जाम दिया जाता है, और डॉक्टर मजहर है जिन्होंने मुलाजमीन पर इंतकामी जो है कार्रवाई का आगाज कर दिया और उन्हें बिला वजह जो तंग किया जाने लगा, जिस पर आज सुबह 8 बजे से जो है लेकिन मुलाजमीन ने जो है एहतजाज किया था, काम छोड़ एहतजाज का ऐलान किया था और उनका एहतजाज जारी था। लेकिन अब कुछ देर कबल जो है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मशीन बिल जनत से रब्ता किया गया मुलाजमीन से और कहा गया कि आप जो एहतजाज को खत्म करें, और जनत से दरख्वास्त की गई और ये कहा गया कि आप सर्विसेज की बहाली करें और आपके तमाम जो बुनियादी मसाइल हैं उनके ऊपर मैं सुनूंगी और उसके साथ साथ आपको उन मसाइल को हल भी करूंगी। जिस पर अब पार्लियामानी सेक्रेटरी सेठ की यकीन दहानी पर अस्पताल मुलाजमीन ने अब जो एहतजाज मौखर कर दिया और 3 दिन के लिए मौखर किया गया और कहा गया कि अगर ये हमारे मुतालबात कुछ न माने गए तो 2 मरलों में एहतजाज जो है किया जाएगा। पहले मरले में तो पुरअमन रहेंगे, लेकिन उसके बाद जो है पुरअमन रहना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सजाद काज़मी। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग जारी है। पुलिस के जवानों की डाकुओं के ठिकानों पर फायरिंग, मुताबिक ठिकाने तबाह कर दिए गए। मजीद जानेंगे मोहम्मद फारूक से। जी फारूक। जी बिल्कुल, एक बार फिर कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन जारी है। माजी में भी मुतअद्दिद बार इन खतरनाक डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन हुए, मगर इन सब के बावजूद इन खतरनाक डाकुओं ने रहीम यार खान के इस कच्चे के इलाके को नो गो एरिया बना रखा है। एक बार फिर पुलिस डीपीओ रहीम यार खान मुंतजर मेहंदी की सरबराही में भारी नफली और बख्तरबंद गाड़ियों के हमरा कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन करने में मसरूफ है। इस ऑपरेशन में अब तक डाकुओं के मुताबिक ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं, जबकि पुलिस ने इमरानी गैंग के 4 खतरनाक डाकू भी गिरफ्तार कर लिए हैं। दूसरी जानिब तावान की खातर अगवा किए गए 2 मुखबिर भी पुलिस ने बाजियाब करवा लिए हैं। इन दोनों शहरियों को थाना भूंग की हदूद से अगवा किया गया था। अगवाकारों को दी जाने वाली रकम 55 लाख रुपए और खतरनाक असला भी इन कच्चे के डाकुओं से बरामद कर लिया गया है। डीपीओ रहीम यार खान मुंतजर मेहंदी के मुताबिक आखिरी डाकू की गिरफ्तारी तक कच्चे में ऑपरेशन जारी रहेगा। जी सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद फारूक। मटियारी का गवर्नमेंट हाई स्कूल शादी हॉल में तब्दील हो गया। सरकारी स्कूल में शादी की तकरीब के फुटेज मंजर आम पर आ गई। शादी की तकरीब में सियासी रहनुमाओं ने भी शिरकत की है।
मटियारी का गवर्नमेंट हाई स्कूल शादी हॉल में तब्दील कर दिया गया। सरकारी स्कूल में शादी की तकरीब की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। शादी की तकरीब में सियासी रहनुमाओं ने भी शिरकत की है। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वबा के दौरान खिदमत सर अंजाम देने वाले अल खिदमत फाउंडेशन के कारकुनान में तारीफी असनाद तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की गई। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है, सियासी जमातों को सोचना चाहिए, मुल्क एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इकलाल हैदर रिपोर्ट करेंगे। कोरोना वबा के दौरान वस्ती पंजाब में इंसानियत की खिदमत करने वाले कारकुनान के एजाज में अल खिदमत फाउंडेशन के मरकजी दफ्तर में तकरीब मुनक्किद की गई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने अल खिदमत फाउंडेशन के वॉलंटियर्स की खिदमत के एतराफ में तारीफी असनाद और शील्ड्स तकसीम की। तकरीब में शरीक मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि इस वक्त मुल्क एहतजाजी तहरीकों का मुतहम्मिल नहीं। उम्मीद है तमाम जमातें ठंडे दिमाग से सोचेंगी। भारत में मुसलमानों पे जिंदगी जो है तंग कर दी गई है। फिर उसके बाद कोविड-19 की वजह से हमारे बहुत से मुआशी चैलेंजेस हैं। तो मैं समझता हूं कि इन हालात में मुल्क जो है अफरा तफरी लड़ाई झगड़े का मुतमिल नहीं हो सकता। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने अल खिदमत फाउंडेशन की कोरोना वबा के दौरान खिदमात को सराहा, जबकि अल खिदमत फाउंडेशन ने आइंदा भी मुल्क और कौम पर कुदरती और नागहानी आफात से मुत्तहिद होकर निमटने और इंसानी खिदमात के जज्बे को जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया। कैमरामैन मोहम्मद जामिन के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारियत का सिलसिला जारी है। वादी को जेल में तब्दील हुए 14 माह बीत गए। काबिज फौज की जानिब से मुसलसल इंसानी हुकूक की पामालियां की जा रही हैं। हुर्रियत क़यादत समेत हजारों कश्मीरी आज भी जेलों में बंद हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालम कम न हुए। वादी को जेल में तब्दील हुए 14 माह गुजर गए। इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन आलमी रहनुमाओं का सोया ज़मीर जाग न सका। भारत के गैर कानूनी इकदामात के बाद मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज के मजालम बढ़ गए। नाम निहाज सर्च ऑपरेशन और जैली मुकाबलों में अब तक 233 कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 14 माह के दौरान काबिज फौज की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में बच्चों और खवातीन समेत 1406 कश्मीरी जख्मी हुए। पैलेट गन के इस्तेमाल से 441 कश्मीरी शदीद जख्मी हुए। 163 अफराद बिनाई से ही महरूम हो गए। हुर्रियत क़यादत समेत 13,768 कश्मीरी आज भी पाबंदे सलासल हैं। काबिज फौज की जालमाना कार्रवाइयों में 960 घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। मोदी की हिंदुत्वा हुकूमत की एमा पर मकबूजा वादी में नस्ल कुशी की जा रही है। कोरोना की आलमी वबा के दौरान भी कश्मीरियों को बुनियादी तिबी सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है। कश्मीरियों का कहना है, भारतीय फौज के मजालम से जदोजहद आजादी की तहरीक को नहीं दबाया जा सकता। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही मुमकिन है। दुनिया भर में ऐसे फनकार मौजूद हैं जो अपने फन को ऐसे मुनफरिद अंदाज में पेश करते हैं कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। ऐसा ही कारनामा एक चीनी आर्टिस्ट ने पेश किया। चीनी के रंगारंग शीरे से ऐसे फनपारे तैयार किए कि देखने वाले दंग रह गए। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।